Hello students, today we will do part 7 of the solid state. In this video we will do the numericals related to the formula of the compound and number of voids filled. Now in the last video we have done cubic closed pack structure. In cubic closed pack structure you have learned that in CCP or HCP structure we have two type of voids, octahedral and tetrahedral. If the number of spheres in closed pack structure is n, then number of octahedral void generated will be n and number of tetrahedral void generated will be 2n. We will use this formula in solving the numericals. While doing the numericals related to formula of a compound and number of voids filled, you must keep one thing in mind that in ionic solids, anions जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है. They are arranged in closed pack structure. Closed pack structure can be CCP or it can be HCP. CCP को FCC भी बोलते हैं. While जो आपके कटायंस होते हैं उनका साइज छोटा होता है, so they might be occupying the voids tetrahedral or octahedral voids. Now our first numerical. A compound is formed by two elements X and Y. Atoms of element Y as anion make CCP and those of element X as cation occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? इस numerical में बताया गया है कि जो Y है, जो anions हैं, they make CCP. CCP और FCC एक ही बात होती है and the element X which are the cations they occupy all the octahedral voids. तो जो भी आयन CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा उसको हम n एज्यूम कर लेंगे. सो लेट नंबर ऑफ Y एटम्स इज इक्वल टू n. बिकॉज Y एटम्स जो हैं दे हैव CCP अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ वॉइड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ Y एटम्स. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आ जाएंगी n एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2n. Now this X is occupying all the octahedral voids. It means number of X atom is equal to number of octahedral voids, that is n. Now the ratio of X is to Y. तो ratio आएगा n is to n, that is 1 is to 1 and formula will be XY. Now next numerical. Atoms of element B form HCP lattice and those of element A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है which is formed by element A and B. जो एलिमेंट B है उसके एटम्स दे फॉर्म HCP लैटिस. HCP लैटिस जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर. वाइल एटम्स ऑफ एलिमेंट A दे ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब जिस भी एलिमेंट्स के एटम HCP लैटिस बनाएंगे द नंबर ऑफ दैट एटम विल बी टेकन एज n. So let number of B atom is equal to X. जो भी एटम HCP लैटिस में प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ वॉइड्स जो हैं उन एटम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे. तो नंबर ऑफ octahedral voids will be n while number of tetrahedral voids is equal to 2n. Now because A is occupying 2/3 of tetrahedral voids, so number of A atoms is equal to 2/3 of tetrahedral voids, that is 2/3 into 2n.
और ये आएगा 4n/3. नाउ वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ A is to B. It come out to be 4n/3 is to n, that is 4:3. So formula आएगा A4B3. In this numerical, it is given that ferric oxide crystallizes in a hexagonal closed packed array of oxide ion with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ion. Derive the formula of the ferric oxide. तो ये जो कंपाउंड है ये आयरन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है. तो इसमें ऑक्साइड आयंस जो हैं दे आर arranged in HCP. HCP mean hexagonal closed packed, while ferric ions, Fe3 plus ions, they are present in 2/3 of octahedral voids. 2/3 इसलिए लिखा है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है कि 2 out of every 3 मीन 3 में से 2 voids जो हैं octahedrals they are occupied by ferric ion. तो इसलिए मैंने लिखा है 2/3 of octahedral voids. अब हम क्या करेंगे, जो भी एटम या आयन HCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा उसको हम n मान लेंगे. सो लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन्स इज इक्वल टू n. नाउ जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे दे विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन HCP अरेंजमेंट. और यहाँ पे HCP अरेंजमेंट है ऑक्साइड आयन की. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू n while number of tetrahedral voids is equal to 2n. Now Fe3 plus ion they are present in 2/3 of octahedral voids. So number of Fe3 plus ion is equal to 2/3 of octahedral voids. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/3 into n क्योंकि octahedral voids कितनी है n. So it comes out to be 2n/3. Now ratio of Fe and O ion. So ratio कितना आया 2n/3 is to n, that is 2:3. So formula क्या आएगा Fe2O3. Now next question. In a crystalline solid, anion B arranged in a cubic close packing, cation A are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. If all the octahedral voids are occupied, what is the formula of the solid? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें A are the cations and B are the anions. Anion B they are arranged in CCP. CCP mean cubic closed packing. CCP को हम FCC भी बोलते हैं. While cation A they are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids. It means जितने octahedral voids में A होंगे उतने ही tetrahedral voids में भी A होंगे. One more thing is mentioned कि जितने भी octahedral voids हैं they are filled. Now we will let number of B atoms is equal to n. हम B को ही assume करेंगे n because B जो है it is arranged in CCP. So number of octahedral voids will be n while number of tetrahedral voids is equal to 2n. Now we will find the number of A. So number of A atoms is equal to number of A in octahedral voids plus number of A in tetrahedral voids. तो सारी octa भरी हुई हैं. It means कितने A octahedral voids में होंगे n और जितने octa में हैं उतने ही tetra में हैं. So I have written n plus n. So it is 2n. Now ratio of A and B. It is
2n is to n, that is 2 is to 1. So formula is A2B. This is another type of numerical. In a normal spinel structure, O2 minus ions form FCC packing, and 1/8 of the tetrahedral sites are occupied by divalent metal A2 plus ions, and half of the octahedral sites are occupied by trivalent B3 plus ions. What is the ratio of tetrahedral to octahedral site? First is occupied in spinel structure, second not occupied in spinel structure. इस क्वेश्चन में आपको रेशो निकालना है. पहले आपको रेशो निकालना है टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल साइड विच आर ऑक्यूपाइड, और सेकेंड पार्ट में आपको जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एम्प्टी हैं उनका रेशो निकालना है. सो इन दिस क्वेश्चन O2 minus ions, they are arranged in FCC. So let number of O2 minus is equal to n. So number of octahedral voids also equal to n, while number of tetrahedral voids is equal to 2n. Now A2 plus ions, they are arranged or present in 1/8 of tetrahedral voids. So number of tetrahedral voids occupied is equal to number of A2 plus ion, and A2 plus ion कितने होंगे 1/8 of tetrahedral voids. तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/8 इंटू 2n. 2n क्यों लिखा? क्योंकि टोटल टेट्राहेड्रल voids हैं 2n, तो ये आया n/4. B3 plus ions, they are present in 1/2 of octahedral voids. जो B3 plus ion है, they are present in half of the octahedral voids. So number of octahedral voids occupied is equal to number of B3 plus ion, क्योंकि octa उतनी ही भरी होंगी जितने B3 plus ion होंगे, और B3 plus ion कितने होंगे? half of octahedral voids, that is 1/2 into n. n क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितनी है n, और n में से आधी भरी हुई हैं, सो आया n/2. अब हमें रेशो निकालना है. रेशो ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड इज टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिल्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी ऑक्यूपाइड है? n/4. और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी ऑक्यूपाइड है? n/2. तो ये रेशो आ गया 2:4. नाउ इन सेकेंड पार्ट आपको रेशो निकालना है जो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अनऑक्यूपाइड है, मीन अनफिल्ड है. तो अनफिल्ड टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कैसे निकालेंगे? टोटल जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी उनमें से यू विल सबट्रैक्ट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कितना है n, और कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भरी हुई हैं n/2. तो कितनी अनफिल्ड होंगी? n माइनस n/2. आपका आंसर आ जाएगा n/2. इसी तरह से आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स अनऑक्यूपाइड या एम्प्टी निकाल लेंगे. टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं 2n, और कितनी भरी हुई हैं? n/4. तो आप 2n से n/4 जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7n/4. तो 7n/4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो एम्प्टी होंगी या अनऑक्यूपाइड होंगी. तो हम रेशो निकालेंगे. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स नॉट ऑक्यूपाइड इज टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नॉट ऑक्यूपाइड, और ये आएगा 7n/4 is to n/2. That is 7:2. Now another type of numericals जो इसमें आते हैं, इन numericals में आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा कंपाउंड का, और ये भी बताया जाएगा
कि कौन सा एटम या आयंस CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा या HCP अरेंजमेंट में होगा, और कौन सा आयन या एटम जो है वॉइड में प्रेजेंट होगा। बट ये नहीं बताया जाएगा कितनी वॉइड्स फिल्ड हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का एक एग्जांपल है, इन अ क्रोमियम 3 क्लोराइड CrCl3 chloride ions have cubic closed packed arrangement and Cr3 ions are present in the octahedral holes. What fraction of the octahedral holes is occupied? What fraction of total number of holes is occupied? तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है CrCl3, ये क्रोमियम 3 क्लोराइड है। अगर आप फॉर्मूले को देखें, यू कैन से कि जो क्रोमियम और क्लोराइड आयन का रेशो है इट इज़ 1:3। अगर हम मान लें कि क्रोमियम N है तो क्लोराइड आयन कितने होंगे 3N। तो क्लोराइड आयंस जो हैं वो CCP बना रहे हैं। तो फॉर्मूले से हमें पता लगा कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने हैं 3N, और जो क्लोराइड आयन है दे हैव CCP अरेंजमेंट, और इसीलिए जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे दे विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ Cl- आयन। क्योंकि Cl-3N है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, वो भी 3N होंगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन CCP अरेंजमेंट। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, डबल ऑफ 3N, दैट इज 6N। नाउ जो Cr3+ आयंस हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हमें ये नहीं पता कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि नंबर ऑफ Cr3+ Rn, अभी हमने निकाला था कि क्रोमियम और क्लोराइड आयन का रेशो है N:3N। तो क्रोमियम आयन कितने हो गए, N हो गए। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी ऑक्यूपाइड होंगी, जितने Cr3+ आयन होंगे, और Cr3+ आयन कितने हैं N। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड विल बी N। नाउ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड। तो जब भी फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, we will divide number of octahedral voids filled by total number of octahedral voids। तो कितनी ऑक्टा भरी हुई हैं N, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हैं 3N। तो फ्रैक्शन आ गया 1/3। नाउ इन द सेकेंड पार्ट आपको ये निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स इज ऑक्यूपाइड। तो जब आप फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाइड निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। तो नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी फिल्ड है N, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो यहाँ पे कोई भी फिल्ड नहीं है तो N हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिखेंगे टोटल, दैट इज 3N + 6N। तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/9। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछी गई होती कि कितनी वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ फ्रैक्शन पूछा है तो हमने इसलिए नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स लिखा है। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पे फॉर्मूला गिवन होगा। सो इन दिस क्वेश्चन, इन अ मिनरल स्पाइनल हैविंग द फॉर्मूला MgAl2O4, oxide ions are arranged in CCP. Mg2+ ions occupy the tetrahedral voids while Al3+ ions occupy the octahedral voids. What percentage of tetrahedral voids is occupied by Mg2+ ion? और सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं what percentage of octahedral voids is occupied by Al3+ ion?
तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन जितने भी आयंस हैं इनका रेशो निकालेंगे। तो रेशो आएगा 1:2:4, क्योंकि फॉर्मूले में एक मैग्नीशियम है, 2 एल्युमिनियम है, 4 ऑक्सीजन है। तो हम इसे लिख सकते हैं N:2N:4N। बिकॉज ऑक्साइड आयन जो है दे आर अरेंज्ड इन CCP। तो जो भी एटम CCP में अरेंज होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ O2 माइनस आयन कितने आए, 4N आए। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4N, while number of tetrahedral voids is equal to 8N. Now because magnesium it is present in tetrahedral voids, तो tetrahedral voids occupied, कितनी tetrahedral voids occupied होंगी, जितने मैग्नीशियम आयन होंगे। और मैग्नीशियम आयन कितने हैं, N, हमने फॉर्मूला से निकाला। नाउ जो अल्यूमिनियम आयंस हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ Al3+ आयन। और अल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2N। नाउ परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इनटू 100। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, मैंने इनटू 100 किया। अगर फ्रैक्शन निकालना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करती। तो मैंने किया n कितने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड, सो n बाय 8N, बिकॉज टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 8N इनटू 100, और आंसर आया 12.5%। Now percentage of octahedral voids occupied, this is equal to number of octahedral voids filled divide by total number of octahedral voids into 100, and I have written 2N। 2N ऊपर लिखा है बिकॉज octahedral voids कितने भरे हुए हैं, 2N, डिवाइड बाय टोटल octahedral voids, कितने octahedral voids, 4N into 100, और आंसर आया 50%। Now the last question, a compound forms HCP structure. What is the total number of voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपाउंड है जो HCP स्ट्रक्चर बनाता है। आपको निकालने हैं कि इस कंपाउंड के 0.5 मोल में कितने वॉइड्स होंगे और इन वॉइड्स में से कितने वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपाउंड आर 0.5 मोल। वी ऑल नो दैट कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, और 6.022 इंटू 10⁻23 को Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस कंपाउंड इन HCP कितने होंगे, 0.5 इंटू Na, बिकॉज एक मोल में Na एटम्स होते हैं तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 इंटू Na, बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये HCP स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड will depend on the number of atoms of this compound. So number of octahedral voids कितने आएंगे, वो भी आएंगे 0.5 Na, and number of tetrahedral voids कितने आएंगे, 2 into 0.5 Na, that is Na. So total number of voids कितने आए, 0.5 Na plus Na, that is 1.5 Na। तो ये टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं। जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप 1.5 को
022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और अब हमसे पूछा गया था कितने इनमें से टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो वो हमने ऑलरेडी निकाल ली हैं Na। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।